يسر ولا تؤثر وتمم بالخير بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جو کتاب ہم شروع کرنے لگے ہیں حاشیہ ملا عبداللہ، اس کا متن تحریر کیا ہے ملا تفتازانی نے، اور متن کے اوپر حاشیہ اور شرح لگائی ہے ملا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ کتاب علم منطق میں ہے. قبل اس کے کہ ہم گفتگو میں شروع ہو جائیں اور اس فن کا آغاز کریں، علم منطق کا تعارف ضروری ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے منطق چیز کیا ہے، ہم اس کو کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کی غایت یا منفعت کیا ہے. ٹھیک ہے قبلہ؟ اب سب ذرا یہ کتاب ہے ایسے دیکھو، ایسے دیکھو. چھوٹی سی ایک مثال ہے، اس مثال سے گفتگو کا آغاز کرنے لگے ہیں. سوال یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں یہ جو کتاب ہے، آپ اپنے اندازے سے، اپنی سوچ سمجھ سے ججمنٹ دیں گے اس کتاب کا وزن کتنا ہے. اب صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ آدھا کلو. جلوی العباس، آپ کا اندازہ کیا ہے؟ آدھا کلو. کم یا زیادہ کوئی احتمال تقریباً ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ اگر صاحب یہ آدھا کلو کی ہوگی، ہو جائے گی. آپ کی ججمنٹ کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں یہ نسخہ ہے کتاب کا؟ ذرا اٹھائیں اس کو، اٹھائیں جیسے میں نے اٹھایا ہوا. آپ بتائیں. کم، آدھا کلو سے کم ہے، بہت سے تھوڑا زیادہ ہے. ملک ادریس، آپ کے ہاتھ میں ہے نسخہ؟ اچھا چلو آپ ججمنٹ دے دیں، اس نسخے کا کیا وزن ہوگا؟ پاؤ ہو جائے گی. جلوی العباس آدھا کلو، بھائی جان آدھا کلو اور 1 پاؤ کے درمیان. ملک ادریس فائنلی 1 پاؤ. آپ جناب آدھا کلو سے تھوڑی زیادہ ہوگی، کم نہیں ہے. عاصم 1.5 پاؤ ہو جائے گی. بھائی جان 1.5 پاؤ کے قریب ہے. آپ شاکر کیا کہتے ہیں؟ آدھا کلو سے کم اور پاؤ کے درمیان 1.5 پاؤ. قوم کے درمیان اختلاف ہو گیا. ٹھیک ہے، ہر ایک نے اپنی فکر استعمال کی، اپنی ججمنٹ کو پیش کیا. کسی نے کہا ہے کہ اس کا وزن آدھا کلو رہے گا، کچھ نے کہا کہ اس کا وزن 1 پاؤ ہے، کچھ نے بولا کہ آدھا کلو اور پاؤ کے درمیان ہوگا. تو سب لوگوں نے اپنی اپنی ججمنٹ دی ہے، مگر کوئی بھی اس بات پہ متفق نہیں ہے کہ کنفرملی یہ کہہ سکے کہ اس کا وزن یہ ہے. یہ متفق ہیں آپ؟ سب کی ججمنٹ الگ الگ ہے نا، اختلاف ہو گیا ہے نا. اختلاف کیوں ہوا ہے؟ اختلاف اس لیے ہوا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے ججمنٹ کی ہے اندازے سے. آپ نے اس کے وزن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اندازے سے. اور اندازہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پرفیکٹلی آپ کو کنفرم کر کے بتائے کہ یہ وزن ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ کنفرم کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو جا کے اس کا وزن کرو. اب حافظ صاحب وزن کریں تو بھی وزن وہی سیم نکلے گا. جری العباس کرے وزن تو بھی سیم رہے گا. آپ میں سے جو بندہ بھی ترازو پہ رکھ کے وزن کرے گا، تو اب وزن کرتے وقت جب ترازو پہ آپ تولیں گے اس وقت تو اختلاف نہیں ہوگا. یا یہ تولیں گے تو اور وزن نکلے گا، یہ تولیں گے تو اور وزن نکلے گا، سیم ہی نکلے گا. اچھا، ترازو پہ آپ نے رکھا تو وزن
ایک ہی نکلا ہے اور کنفرم نکلا ہے، لیکن اندازے سے بتایا تو اختلاف ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ترازو پہ تولنے اور اندازے میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب ترازو پہ تولا گیا، جس چیز پہ تولا گیا اس کو آپ اپنی زبان میں کیا کہتے ہو؟ ویٹ یا وٹا، ٹھیک ہے جی؟ کیا بولتے ہیں اس کو؟ ویٹ۔ عربی میں اس کو بولتے ہیں میزان یا قیاس، جو ویٹ ہوتا ہے اس کو قیاس بھی بولتے ہیں عربی میں۔ اچھا، اور یہ جو تمہارے پاس ویٹ ہے یا وہ بٹے ہیں، اس ویٹ کو، اس بٹے کو منطق کی زبان میں دلیل کہتے ہیں۔ اس کا وزن آدھا کلو ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ یہ بھی وزن کر کے بتاتا ہوں۔ وہ جو ویٹ ہے وہ اس کے وزن کو پڑتال کرنے کی، جج کرنے کی کیا ہے؟ دلیل ہے، اور دلیل کے بعد پھر اختلاف نہیں رہے گا۔ اختلاف رہے گا جب آپ اندازے کے ساتھ ججمنٹ دو گے۔ تو اندازے میں اور دلیل میں کوئی فرق سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہی ہماری منطق ہے، یہی درس کی تمہید ہے۔ معصوم کا فرمان ہے، دین اللہ لا یقاسو بے عقول الرجال، اللہ کے دین کو لوگوں کی عقلوں کے ساتھ قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لا یقاس کا لفظ یہاں بھی وزن کے معنی میں آیا ہے، اندازے کے معنی میں آیا ہے۔ اللہ کے دین کو لوگ اپنی عقلوں سے اندازہ لگا کے لینے کی کوشش نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندازہ کوئی پرفیکٹ چیز نہیں ہے۔ اللہ کے دین کو لینے کے لیے آپ کو قانون اور دلیل کا سہارا لینا ہوگا۔ کس کا سہارا لینا ہوگا؟ قانون اور دلیل کا سہارا لینا ہوگا۔ اندازے سے آپ اللہ کے دین کو نہیں لے سکتے۔ اور اللہ کا دین صرف فقہ نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھے کہ شاید اس حدیث کا تعلق فقہی احکام سے ہے، کہ فقہی احکام آپ اندازے سے نہیں لے سکتے۔ نہ، دین اللہ ہے، اللہ کا دین شامل ہے فقہ کو بھی، فقہ کے علاوہ باقی جتنا جو بھی دین ہے تمہارا، اخلاقیات ہیں، عقائد ہیں، معارف ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، سب کچھ جو بھی اللہ کے دین کے زمرے میں آتی ہیں چیزیں، سب جو ہیں ان میں آپ اندازہ استعمال نہیں کر سکتے۔ کیا چاہیے آپ کو وہاں پہ؟ دلیل چاہیے، قانون چاہیے۔ اچھا، جب قانون آ جائے گا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اختلاف ختم کرنے کا طریقہ قانون ہے، دلیل ہے۔ طے ہو گئی بات؟ مذہب شیعہ کا باقی مکاتب کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ اسی بات میں اختلاف ہے کہ وہ دین قیاس سے، اندازے سے لیتے ہیں۔ اس لیے کوئی یہاں ہاتھ باندھ کے پڑتا ہے، کوئی ادھر باندھ کے پڑتا ہے، اور کوئی اس سے اوپر۔ یہ سارے اندازے ہیں ان کے مولویوں کے، انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ ہو سکتا ہے شاید نبی پاک اس طرح نماز پڑھتے ہوں گے۔ اندازہ ہے مولوی صاحب کا۔ مولوی صاحب سے مراد ان کے جو 4 امام ہیں۔ اچھا، وہ مجتہد تھے، مولوی تھے، اوپر سے منصوص من اللہ نہیں تھے۔ تو اندازہ تھا ان کا کہ کسی نے کہا کہ نبی پاک ایسے نماز پڑھتے ہوں گے، کسی نے کہا کہ ایسے پڑھتے ہوں گے۔ ہماری فقہ میں قیاس اندازہ نہیں ہے، اس لیے ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ پرفیکٹ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اختلاف پیدا ہوگا جب اندازہ استعمال کیا جائے گا۔ تو اختلاف سے بچنے کے لیے عقل مندی یہی ہے کہ کس کا سہارا لیا جائے؟ دلیل کا۔ جب دلیل آ جائے گی تو دلیل کیا ہے؟ وہ ایک ایسی حجت قاطع ہے جس کے بعد اختلاف کی گنجائش نہیں رہتی۔ سب لوگ جو ہیں اس پہ متفق ہو جاتے ہیں، اور انسانی فطرت اس دلیل کے سامنے سر جھکانے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ اب آؤ یہاں سے جو ہے اگلا نقطہ شروع ہونے لگا ہے درس کا۔ ابھی تک تو بات ہم نے کی ہے دین کی، لیکن ہم جی رہے ہیں دنیا میں، اس میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جنت میں جی رہے ہو؟ کہاں ہو؟ دھرتی پہ ہو؟ جس سیارے میں تم زندگی گزار رہے ہو یہ دنیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا ایک قدم دنیا میں ہے، دوسرا قدم دین کی وادی میں ہے۔ تو اب دین اور دنیا کے درمیان اس چکی میں پس رہے ہیں، کیا کرنا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے؟
تو آپ نے دین جو ہے وہ دنیا کی روشنی میں لینا ہے یا دنیا آپ نے دین کی روشنی میں لینی ہے؟ ٹھیک ہے، تو منطق آپ کو سمجھائے گی دین آپ کس روشنی میں لیں گے، دنیا آپ کس روشنی میں لیں گے۔ منطق آپ کو دین اور دنیا دونوں کی روشنی فراہم کرے گی۔ ٹھیک ہے، انیرا مولوی بننا ہے، دنیا نہیں چاہیے، چاہیے نا؟ اچھا، گفتگو سمجھ آ رہی ہے یا ایسے پیسے کارے شروع ہو گئی ہے؟ آ رہی ہے۔ دنیا کا یہ جو نظام چل رہا ہے یہ دو چیزوں پر قائم ہے، توجہ ہے یاسم، کتنی چیزوں پہ قائم ہے؟ دو چیزوں پہ قائم ہے، یہ نظام دو چیزوں پہ چل رہا ہے۔ تمہاری زندگی، اب دنیا کی طرف جب میں لفظ دنیا بولوں تو ہر بندہ اپنی زندگی کی طرف نظر کرے، کیونکہ ہر بندے کی زندگی اسی کی اپنی دنیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنی زندگی کی طرف آپ دھیان کریں، ہر بندے کی اپنی زندگی، پرسنل لائف اسی کی اپنی دنیا ہے، تو اس کی اپنی یہ دنیا، اس کی یہ زندگی چل رہی ہے کس چیز پر؟ دو چیزوں پر، اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ اعتماد اور دلیل، ٹھیک ہے؟ کتنی چیزوں پہ چل رہی ہے؟ کون کون سی ہیں وہ؟ اعتماد اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں آپ دلیل کے بغیر مطمئن نہیں ہوتے، دلیل کا آپ مطالبہ کر دیتے ہیں، دلیل آئے گی تو پھر آپ اس بات کو مانیں گے، وگرنہ نہیں مانیں۔ یہ کون سی چیزیں ہیں؟ دین کی بہت ساری چیزیں ہیں جو بغیر آپ دلیل کے نہیں مانتے۔ عقائد کی مثال لے لو، کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ بیان کیا جائے، دلیل کے بغیر آپ اس کو قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہو گئی بات؟ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ اعتماد کی بنیاد پہ مان لیتے ہو، ٹھیک ہے؟ میں نے جری العباس سے پوچھا حرم جانا ہے، راستہ بتا دو، اس نے مجھے راستہ سمجھا دیا، سی یہاں سے آپ جو ہے شہر رسول پہ چلے جائیں، وہاں سے آپ جو ہے وہ بنی سائڈ پہ مڑ جائیں، کچھ قدم چلیں گے حرم آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ میرے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے جو راستہ مجھے بتایا یہ راستہ ٹھیک ہے، آپ کے پاس ہے دلیل؟ جب آپ راستہ پوچھتے ہو، بتلانے والا آپ کو جو گائیڈ کرتا ہے، راستہ بتلاتا ہے، آپ کے پاس دلیل ہے کہ اس نے جو راستہ بتلایا ہے بالکل پرفیکٹ ٹھیک بتلایا ہے؟ اعتماد کرتے ہو، اسی کے بتلائے ہوئے راستے پہ چل پڑتے کرتے ہو، ایسا یا نہیں کرتے ہو؟ ٹھیک ہو گئی بات؟ تو جو تمہاری روز مرہ کی زندگی ہے، جو روز مرہ کی زندگی کی ضروریات ہیں، ان میں انسان جو معاملہ کرتا ہے یا ان امور میں انسان اپنی زندگی گزارتا ہے وہ اعتماد کی بنیاد پہ گزارتا ہے، ٹھیک ہے؟ بیمار ہو گئے، ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ڈاکٹر نے نسخہ لکھا، مہنگا ہے، سستا ہے، جیب میں پیسے نہیں ہیں، پھر بھی آپ کو لینا پڑتا ہے، لے لیا، گھر آ گئے۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے جو ڈاکٹر نے دوا لکھی ہے یہی دوا ہی آپ کی بیماری کی علاج ہے؟ کوئی ہے دلیل؟ کچھ نہیں ہے، تو پھر اب کیوں کھا رہے ہو جب دلیل نہیں ہے؟ ڈاکٹر پہ اعتماد کیا تم نے، ایسے ہے یا نہیں ہے ارشد صاحب؟ تو روز مرہ کی زندگی میں انسان اپنی زندگی کو گزارتا ہے کس کی بنیاد پہ؟ اعتماد کی بنیاد پہ، اور فقہی احکام، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تمہاری روز مرہ کی زندگی کی ضروریات ہیں، ٹھیک ہے؟ فقہی احکام تمہارے کیا ہیں؟ روز مرہ کی زندگی کی ضروریات ہیں، اور روز مرہ کی ضروریات میں انسان کیا کرتا ہے؟ اعتماد کی بنیاد پہ چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ اعتماد کا دوسرا نام فقہ کی زبان میں تقلید ہے۔ تقلید پر علماء کتابیں لکھ رہے ہیں، تقلید کی تعریف کیا ہے، دلیل کیا ہے۔ او بھائی صاحب، جتنا تم نے جو ہے وہ کھاڑا لگایا ہوا ہے نا، فطرت کی زبان بولو تاکہ اگلے کو سمجھ بھی آئے۔ تقلید بھائی یہی اعتماد۔ دنیا میں کون سا ایسا انسان ہے جو یہ کہے کہ میں زندگی میں کبھی کسی پر اعتماد نہیں کرتا ہوں، میں صرف دلیل کے تحت چلتا ہوں؟ ایسا بندہ ہے دنیا میں؟ کوئی ایک بندہ دکھلا دو، کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ذاکرین جو تقلید کی مخالفت کرتے ہیں وہ بھی اپنی زندگی میں ہزاروں معاملات میں اعتماد کے بغیر آپشن ہی نہیں ہے ان کے پاس۔
बल्कि वो तो रोज़ाना बेचारे एतमाद करते हैं, जब क्योंकि रोज़ाना नई जगह पे महिला पढ़नी है तो रोज़ाना 10 बार रास्ता पूछना पड़ता है। ये मेरा तजर्बा, ऐसा है या नहीं है? अच्छा, तो ये जो एतमाद है ना मेरे मोहतरम, इसी एतमाद का ही दूसरा नाम फ़िक़ह में तकलीद है। और फ़िक़ह में तकलीद क्यों करना पड़ती है आपको? क्योंकि फ़िक़ह तुम्हारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं उनमें से एक फ़िक़ह भी है। और रोज़मर्रा की ज़रूरियात में इंसान अगर तकलीद को छोड़ दे, एतमाद को छोड़ दे और दलील अप्लाई करने की कोशिश करे, तो इसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी क्या हो जाएगी? अजीरन हो जाएगी, दरहम बरहम हो जाएगी, बेचारा मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। कदम कदम पर बेचारा एतमाद को हटाए, दलील इस्तेमाल करे तो घर से नहीं निकल सकेगा। बच्चों को स्कूल भेजना है, मास्टर पे एतमाद है तो बच्चे भेजेंगे, तो पहले रिसर्च करो मास्टर पर, बंदा अच्छा है या अच्छा नहीं है, पढ़ा सकता है या नहीं पढ़ा सकता है, क्वालिफाइड है या नॉन क्वालिफाइड है, तो उस पर रिसर्च के बाद बच्चे अगले साल तक फेल हो जाए। ठीक हो गई बात? घर से निकलते वक्त बेगम को घर अकेला छोड़ कर आए हैं, एतमाद है तो छोड़ के आए, एतमाद नहीं है तो फिर दलील चाहिए। ठीक है, तो फिर आप रिसर्च करें पहले बेगम साहब की लाइफ पर, उसके मिजाज पर, उसके करैक्टर पर। ठीक, जिंदगी अजीरन हो जाएगी भाई आप हर बात में जब दलील को घुसेड़ने की कोशिश करें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आपको फितरत ने सहूलत दी है और कुदरत ने सहूलत दी है कि आप इन चीज़ों को एतमाद की बुनियाद पे कबूल करो और अपनी ज़िंदगी को गुजारो। लेकिन कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़रूरी हैं, उनमें एतमाद काफ़ी नहीं है, उनमें आपको लामहला दलील का सहारा लेना पड़ेगा। और मेरी समझ के मुताबिक इंसान की दीन और दुनिया की कुल चीज़ों को अगर मिला के देखा जाए तो आप 80% एतमाद करते हो, 80% जो है आपकी लाइफ जो है वो एतमाद पे चल रही है, 20% चीज़ें वो हैं जिनमें आपको दलील की ज़रूरत होती है। ठीक है जी, एतमाद और दलील दोनों समझ आ गए। और दलील की दो किस्में हैं, दलील सही भी होती है, गलत भी होती है। ठीक है, जो ये कहता है कि फलां बंदा नबी पाक का खलीफा है और मौला अली को खलीफा बिला फासिल नहीं मानता, आप क्या समझते हैं? बगैर दलील के कह रहा है, उसके पास भी कोई धनी टूटी दलील, समझ रहे हो ना मेरी बात? अच्छा, दलील आप तो कह रहे हो कि दलील पे चल रहा है, तो दलील तो उसके पास है, फिर तो सिर्फ दलील का होना काफ़ी नहीं है। आपने फिर दलील को चेक करना, ये दलील ठीक है या गलत है, खता है या सलीम मिनल खता है। तो दलील के अंदर जब आएंगे तो दलील ठीक भी हो सकती है, दलील गलत भी हो सकती है। तो फिर दलील को पड़ताल करने के लिए हमें एक लेबॉरेटरी चाहिए। लेबॉरेटरी होती है नहीं होती? डॉक्टर ब्लड निकालता है, कहाँ पे डालता है? लेबॉरेटरी में। तो उसके पास कुछ फार्मूले हैं, उसके ज़रिए चेक कर लेता है ये ब्लड बीमारियों से साफ़ है, ये बिल्कुल क्लियर है, ऐसे ही करता है ना। तो अब दलील जो है इसके लिए भी कोई लेबॉरेटरी होनी चाहिए, जहाँ आप दलील को डालें उस लेबॉरेटरी से आपको पता चल जाए तुम्हारी दलील ठीक है या तुम्हारी दलील। जिस लेबॉरेटरी में दलील चेक होती है उसका नाम है मंतिक। और आज हम मंतिक पढ़ेंगे। पता नहीं कुछ हमारी गुजारिशात से फ़ायदा हुआ है आपको, नहीं हुआ? इजाज़त है, वाला नौकरी शुरू करूँ? मुसन्निफ ने मुल्ला अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने, जिन्होंने ये हाशिया लगाया है, मुहश्शी ने इब्तिदा में दो इश्काल उठाए हैं। पहला इश्काल ये उठाया है उसने कि मुसन्निफ ने अपनी इबारत में, जो मुसन्निफ की इबारत है यानी तहजीब के मतन की जो इबारत है, अल किस्मुल अव्वलु फिल मंतिक़ि मुक़द्दिमातुन, ये इबारत कहीं देखी आपने? ये तहजीब की इबारत है, तख्ताज़ानी की मतन की इबारत। अल किस्मुल अव्वलु फिल मंतिक़ि मुक़द्दिमातुन। पहला इश्काल मुहश्शी ने ये उठाया है
کہ القسم الاول اس کو وہ معرفہ لایا ہے، مقدمتن کو نکرہ لایا ہے. تنوین علامت ہے تنکیر کی. ٹھیک پڑھے ہم نا؟ تنوین کس چیز کی علامت ہے؟ تنکیر کی، نکرہ ہے. الف لام کس کی علامت ہے؟ معرفہ کی. نحوی اعتبار سے دیکھا جائے، لغوی اعتبار سے دیکھا جائے، القسم الاول معرفہ ہے، معرف باللام ہے، اور مقدمتون نکرہ. اشکال نہیں، سوال ہے. سوری، اشکال میں اور سوال میں فرق ہے. سوال یہ اٹھایا ہے محشی نے کہ کس ضرورت کے تحت مصنف اس کو معرفہ لایا ہے اور اس کو نکرہ لایا ہے، اور خود ہی اس کا جواب دیا ہے. کہتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ القسم الاول فی المنطق مقدمتن، اس عبارت سے پہلے مصنف نے ایک خطبہ بیان کیا ہے، اپنی کتاب کا خطبہ بیان کیا ہے. اس خطبے کے دوران مصنف نے اپنی کتاب کی وضاحت دی ہے، اور وہاں اس نے یہ کہا ہے کہ بھئی میں یہ جو کتاب لکھنے لگا ہوں، اور یہ جو کتاب لکھنے لگا ہوں، یہ جو کا اشارہ اس کے ذہنی مطالب کی طرف ہے، جن کو بھی ہاتھ میں قلم لے کے کتاب اور کرتاس پہ اس نے اتارنا چاہتا ہے جن مطالب کو. اس کے بارے میں مصنف نے کہا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ مشتمل ہے 2 حصوں پر. ایک حصہ ہے اس کا منطق، دوسرا حصہ ہے اس کا علم کلام. علم کلام جو ہوتا ہے اس میں عقائد بیان کیے جاتے ہیں، مناظرانہ ادلہ بیان کی جاتی ہیں الی آخری. ٹھیک ہے؟ آپ کہیں گے وہ کدھر ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ جب اس کی کتاب کے 2 حصے ہیں، ایک منطق ہے، دوسرا علم کلام ہے، تو وہ دوسرا کدھر گیا؟ اور بھائی جب مصنف نے قلمی نسخہ لکھا تھا تو اس وقت 2 ہی تھے. پھر آپ کے دور جدید دور میں ایڈیشن جو ہے وہ الگ کر دیے گئے، وہ الگ ہو گیا، یہ الگ ہو گیا. لیکن جب اس نے لکھا تھا قلمی نسخہ تو اس کے اندر یہ دونوں حصے تھے. تو خطبے کے اندر اس نے چونکہ اپنی کتاب کی تقسیم بندی کی طرف اشارہ دیا ہے کہ میری کتاب کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ جو ہے وہ منطق ہے، دوسرا حصہ علم کلام ہے. تو جس چیز کا پہلے حوالہ گزر چکا ہو اس چیز کو دوبارہ اگر آپ کلام میں ذکر کرتے ہو تو اس پر الف لام آئے گا عہد ذکری کا. عہد ذکری اصطلاح ہے جو الف لام کے اقسام کے اندر نحو میں بیان کی گئی ہے، اور اس وقت ہم نحو پڑھنے نہیں آئے ہیں تاکہ الف لام کی قسمیں بیان کریں. الف لام کی قسم میں آپ نحو کی طرف رجوع کرو گے، ہم ادھر آپ کو ریفر کر دیں گے، نہ کہ ہم خود آپ کے ساتھ چلیں گے. جاؤ اور نحو سے الف لام کی قسمیں پڑھ کے آؤ. وہاں الف لام کی ایک قسم ہے عہد ذکری. عہد ذکری کا الف لام استعمال ہوتا ہے، یا یہ الف لام عہد ذکری اس چیز پہ داخل کیا جاتا ہے جس چیز کا سابقاً حوالہ گزر چکا ہو. تو سابقاً ذکر حوالہ گزر چکا ہے کتاب کی اقسام بندی کا یا تقسیم بندی کا، تو مصنف نے اس ضرورت کے تحت الف لام عہد ذکری استعمال کیا ہے، تو یہ معرفہ باللام ہو گیا. لیکن مقدمتن، اس سے تو وہ مقدمے کا آغاز کر رہا ہے، اور جب آغاز ہو رہا ہے تو آغاز کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے اس کا حوالہ نہیں ہے. جب حوالہ نہیں ہے تو اس کے اوپر الف لام عہد ذکری استعمال نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے مصنف لفظ مقدمے کو نکرہ لایا ہے. جب نکرہ لایا ہے تو آپ منطقی نحوی لحاظ سے اس کی عبارت کو یا اس کے جملے کو مکمل کرنے کے لیے آپ اس کا مسند لائے یا مبتدا وہاں محذوف مانیں گے اور مقدمہ کا اسناد دیں گے. حاضہ مقدمۃ، اس طرح آپ کی عبارت نحوی لحاظ سے مکمل ہو جائے. قولہ القسم الاول، لما اس وجہ سے، علماء جو جان چکے ہیں آپ یا معلوم ہو چکی ہے، ضمناً ضمنی طور پہ جانی جا چکی ہے. من قولہ کا تعلق علماء سے ہے. مصنف کی عبارت یا مصنف کی قول، کون سا قول؟ مقولہ اس نے بریکٹ میں دیا ہے. قول کا مقولہ ہوتا ہے نا، مقولہ بریکٹ میں دیا ہے. مصنف کا قول جو کہ یہ انڈر بریکٹ ہے، اس قول سے ضمنی طور پر جانی جا چکی ہے جو وجہ، اس وجہ سے القسم الاول کو مصنف معرفہ لایا ہے.
अच्छा जी, ब्रैकेट में क्या इबारत है? फी तहरीर मंतिक वल कलाम। हाज़िही यानी हाज़िही का इशारा उन मतालिब की तरफ जो जहन में है, और कलम हाथ में है। उन मतालिब को सफ़ाई किताब पे उतारना चाहता है। तो क्या बोला कि ये मतालिब जो लिखने लगा हूँ फी तहरीर मंतिक वल कलाम। तो मंतिक वल कलाम चूँकि ये तकसीम हो गई उन मतालिब की जो वो लिखना चाह रहा था, तो इस इबारत से ज़िमनी तौर पे मालूम हो गया क्या कि भाई वो किताब दो हिस्सों पे लिखना चाहता है। तो हवाला आ गया ना दोनों किस्मों का। जब हवाला आ गया, जिस चीज़ का हवाला आ जाए उसको फिर मारफा मुअर्रफ बिल्लाम या आद ज़िक्री के साथ मारफा किया जा सकता है। अन्ना किताबहू, ये उलेमा का क्या है? नाइबुल फाइल है। ज़िमनी तौर पे मालूम है। क्या ज़िमनी तौर पे मालूम है? अन्ना किताबहू अला किस्मैने, मुसन्निफ की किताब अला किस्मैने दो किस्मों पर मुश्तमिल है। अच्छा ये सॉरी लिमा नहीं है, ये लम्मा है, क्योंकि आगे इसकी जजा आ रही है। लम्मा उलेमा, जब मालूम हो गया ज़िमनी तौर पर, ये मैं रिपीट करने लगा हूँ क्योंकि पहले मैं लेमा का तर्जमा कर गया हूँ। लम्मा उलेमा ज़िमनान, जब ज़िमनी तौर पे मुसन्निफ का इंडर ब्रैकेट जो कौल है, इस कौल से ज़िमनी तौर पे मालूम हो चुका। भाई क्या मालूम हो चुका? ज़िमनी तौर पे ये बात मालूम हो चुकी जो अभी कहने लगा हूँ, और वो क्या है? अन्ना किताबहू अला किस्मैने, मुसन्निफ की इबारत मुसन्निफ की किताब दो किस्म पर मुश्तमिल है। तो फिर इस लम्मा की जजा क्या है? लम यहताज, मुसन्निफ को एहतियाज नहीं है। इलत तसरीह है बेहाजा, इस तसरीह को है इलत तसरीह है बेहाजा। तसरीह बेहाजा, बेहाजा यानी इस चीज़ के साथ तसरीह करे। किस चीज़ के साथ तसरीह करे? कि भाई एक किस्म ये है, एक किस्म वो है। ये जो इबारत उसने बनाई है, इस इबारत को फिर तसरीह के साथ वहाँ वो बयान करता है। इस तसरीह को बयान करने की उसे हाजत नहीं थी। जब एहतियाज नहीं थी तसरीह की, यानी दो किस्म में बाकायदा ये कहता कि भाई मेरी किताब की दो किस्में हैं, बाकायदा ये बात कहने की कि मेरी किताब की दो किस्में हैं, इस तसरीह की बाकायदा उसे एहतियाज नहीं थी, क्योंकि ज़िमनी तौर पर वो हम मालूम कर चुके हैं उसकी इबारत से कि उसकी किताब की दो किस्में हैं। अच्छा, लम्मा की जजा मुकम्मल हो गई। फा, अब नतीजा ये निकला। ये नतीजा जो है इस नतीजे में लेकर आएगा कि अलिफ लाम उसने अल किस्मुल अव्वल को मारफा क्यों लाया है और मुकद्दमतुन को नकरा क्यों लाया है। फसहा तारीफुल किस्मिल अव्वल, किस्मिल अव्वल जो है इराब के लिहाज से सहा तारीफुल किस्मिल अव्वल, जो किस्म अव्वल है किताब की, या जो लफ्ज़ किस्मुल अव्वल है, जो लफ्ज़ है नाहवी एतबार से अरबी इबारत की सियागत में किस्मुल अव्वल का, इस किस्मुल अव्वल के लफ्ज़ को मारफ बिल्लाम लेके आना, बिलामिल अहद, लामिल अहद के ज़रिए, ये सही है। क्यों सही है? लेकौन ही मौहूदन ज़िमनन, चूँकि किस्मुल अव्वल का अहद ज़िक्री गुजर चुका है, हवाला इसका पहले जिक्र हो चुका है। वाज़ेह हो गई बात। वहाज़ा, और ये बात बेखिलाफ़िल मुकदमते, मुकदमे के खिलाफ है। क्या मतलब मुकदमे के खिलाफ है? कि मुकदमे का पहले ज़िमनी यसराहतन किसी भी तरह कोई ज़िक्र नहीं गुजरा है। जब ज़िक्र नहीं गुजरा है तो इसको आप मारफा नहीं बना सकते अहद ज़िक्री के साथ, ठीक है। फ़इन्नहु लम युलम वुजूदुहा साबिक़न, इसके वजूद का पहले हवाला मौजूद नहीं है या ज़िक्र नहीं है, इसका वजूद साबिक़न ज़िक्र हो चुका है। लम युलम मालूम नहीं है, लम युलम वजूद है यानी साबिक़न इसका वजूद नहीं गुजर चुका है, ये इसके वजूद का हवाला नहीं है। जब नहीं है तो फलम तकुन माहूदतन, फिर ये माहूद नहीं है, तुम्हारे जहन में इसका हवाला मौजूद नहीं है। जब नहीं है तो फालिहाजा, इस वजह से नकरहा, मुसन्निफ ने लफ्ज़ मुकद्दमा को नकरा जिक्र किया है। वकाला मुकद्दमा, तो ये कोई मंतकी बात नहीं थी, ये नहवी बात है। ठीक हो गई बात।
कौलुहु फिल मंतिक, और हो सकता है आज मंतिक शुरू ना करें, सिर्फ उसकी यही नाहवी इबारतों का जायज़ा ही ले सकें। हाँ, ये एक नुक्ता मुकम्मल हो गया। दूसरा नुक्ता, मुसन्निफ ने कहा है अल किस्मुल अव्वलु फिल मंतिक। इससे पहले ज़रा एक और चीज़ है, एक और जुमला है, वो समाप्त फरमाएं। मुसन्निफ की किताब अला किस्मैन, मुसन्निफ की किताब की दो किस्में हैं, ठीक है जी। एक किस्म कौन सी है? मंतिक, दूसरी इल्म कलाम, ठीक हो गई बात। अच्छा, मंतिक और इल्म कलाम ये लफ्ज़ बाद में बोलेंगे, इससे पहले एक और लफ्ज़ है, एक है अल किस्मुल अव्वल और एक है अल किस्मुल सानी, ठीक हो गई बात। अल किस्मुल अव्वल से मुराद कौन सी है? मंतिक, ठीक है। किताब को जब तकसीम करें, अल किस्मुल अव्वल, अल किस्मुल सानी, अल किस्मुल अव्वल से मुराद क्या है? मंतिक है, ठीक हो गई बात। तो अल किस्मुल अव्वल इस लफ्ज़ का तर्जमा है मंतिक। मुसन्निफ के ज़हन में तर्जमा क्या है? मंतिक। जब अल किस्मुल अव्वल का लफ्ज़ बोला है उसने, तो ज़हन में क्या है? इस लफ्ज़ का मिस्ताक उसके ज़हन में क्या है? मंतिक है, ठीक हो गई बात। अब आओ, अल किस्मुल अव्वलो फिल मंतिक, अल किस्मुल से मुराद क्या है? अल मंतिक। तो अल किस्मुल हटाओ, अल मंतिक को फिल मंतिक। इस इश्काल को बोलते हैं इत्तिहादुल ज़र्फ़ वल मज़रूफ़। कुछ इश्कालात उठाए जाते हैं तुम्हारे नॉलेज में, इल्म में इजाफे के लिए। कुछ इश्काल उठाए जाते हैं तुम्हारे IQ लेवल को बढ़ाने के, ठीक है ना। देसी घी से भूख नहीं मिटती, लेकिन बदन को ताकत मिलती है। तो कुछ इश्काल वो हैं कि जो इल्म में इजाफा नहीं करते, मगर ये कि तुम्हें ताकत देंगे। अच्छा साहब, ये नाश्ता समझो आज का। तो ये इश्काल ऐसे ही समझें, शारे की तरफ से अल किस्मुल अव्वल का जो उसने इश्काल बनाया है। इश्काल क्या है? इत्तिहादुल ज़र्फ़ वल मज़रूफ़। इश्काल समझ में आ गया है? जवाब की तरफ आ जाएं। तो शारे फरमाते हैं, आओ जी, फमा तवजीहुल ज़र्फ़ियत, ज़र्फ़ियत की आप तावील दो, इत्तिहादुल ज़र्फ़ वल मज़रूफ़, इस इश्काल की कोई तवजीह बयान करो जिससे आप ज़र्फ़ और मज़रूफ़ के दरमियान इत्तिहाद को ख़त्म कर सकें। तो मुहस्सिन ने इसका जो जवाब दिया है, इल्मी जवाब है, बेहतरीन जवाब है। कहाँ है? वो कहता है कि भाई हम अल किस्मुल अव्वल से मुराद मंतिक नहीं लेते, अल किस्मुल अव्वल से मुराद मंतिक नहीं लेते। आपने जो इश्काल उठाया है वो इसी तनाजुर में उठाया है कि अल किस्मुल अव्वल से मुराद मुसन्निफ के ज़हन में मंतिक है। तो हम तवजीह ये करेंगे कि उसके ज़हन में मंतिक नहीं है। क्या है उसके ज़हन में? दो तीन चीज़ें हैं जो उसने बयान की। वो कहता है अल किस्मुल अव्वल से मुराद मुसन्निफ के ज़हन में नंबर एक क्या है? अल्फाज हैं। और मंतिक से मुराद क्या है? मानी है। तो हमें अल्फाज चाहिए किसको बयान करने के लिए? मानी को बयान करने के लिए। ये नहीं चाहिए। तो वो अल्फाज जो हमें मंतिकी मानी को बयान करने के लिए एहतियाज है, तो अल किस्मुल अव्वल से मुराद हो सकता है उसके ज़हन में अल्फाज हों, वो वाले अल्फाज हों, क्योंकि उन अल्फाज को वो क्या करना चाहता है? सीना के ताश पे उतारना चाहता है। और मंतिक से मुराद उसकी मानी हो, यानी वो मानी जो मंतिक में हम मतालिब और मानी हम जिनका फ़हम हासिल करेंगे, हो सकता है मंतिक से मुराद उसकी मानी हो। तो अल्फाज और मानी दोनों एक चीज़ हैं, ठीक है। जब एक चीज़ नहीं है तो फिर इत्तिहादुल ज़र्फ़ वल मज़रूफ़ का इश्काल रफ़ा हो गया, ठीक है। इलावा से कुछ और जवाबात भी हैं जो तर्जमे से ही आप समझ जाएंगे, क्योंकि इश्काल की चाबी आपको हाथ में आ गई है ना। भाई चाबी हाथ में आ जाए तो फिर इंसान उसको इस्तेमाल कर सकता है, नहीं कर सकता। मंतिकी बनो ना, नावी ना बनो कि हर जगह पे रुक जाओ। कौलुहु फिल मंतिक, मुसन्निफ का जो कौल फिल मंतिक है, इन कीला, अगर ये इश्काल उठा दिया जाए,
लैसल मुरादु बिल किस्मिल अव्वल है, मुसन्निफ की इबारत में जो लफ्ज़ किस्मिल अव्वल है इससे मुराद नहीं है इल्ला मगर क्या है अल मसाइल अल मंतिकिया, वही मसाइल हैं जो इल्म मंतिक में उसने बयान करना है, जिन मसाइल का नाम हमने मंतिक रखा है वही मसाइल मुराद हैं, वही मंतिक मुराद है। फमा तौजीहुल ज़र्फियत, तो इश्काल पैदा हो जाएगा इत्तिहादुल ज़र्फ़ वल मज़रूफ़ का, तो आप इस ज़र्फियत वाले इश्काल की क्या तौजी और तावील पेश करोगे। कुल तो ये जवाब आया। इश्काल समझ में आया या नहीं आया यार, तो हूँ हाँ भी किया करो। यजूज़ो हो सकता है, यजूज़ो यानी हो सकता है, अन युराद बिल किस्मिल अव्वल, जो लफ्ज़ अल किस्मुल अव्वल है इससे मुराद लिया जाए अल अल्फाज वल इबारात, ठीक है, अल्फाज और इबारात मुराद ली जाए। कौन सी अल्फाज और इबारात? जिनको वो किरदास पे उतारना चाहता है। वह बिल मंतिक और लफ्ज़ मंतिक से मुराद लिया जाए क्या? अब इराब दो ना, अल मानी या ये यो है पकी गाल है जरिए लबास, क्या इराब देना है इसको? वबिल मंतिक अल मानी है, वबिल मंतिक अल मानिया अल मानियो, क्या इराब आएगा? हैं अल्लाह से मानी या के इराब ऊपर इराब लगा दो आप अलमानी, नहीं सकील को छोड़ो, आज सरफी तालील सकील कुछ भी है उसको छोड़ो, इराब लगा दो, क्या है यो हो गया। मतलब कि दरेस दे यार आज यो पक्की गाल है आमी खान अरशद, क्या बात है। वायु किथे यजूज़ो अन युरादा, युरादा को क्या चाहिए? नाइबुल फाइल चाहिए। उस युरादा का अल अल्फाजो वल इबारातो, ये नाइब फाइल था, उसके ऊपर अत्फ आएगा। वह बिल मंतिक अल मानियो, किस्मुल अव्वल जो है इस लफ्ज़ से युरादा मुराद लिया जाए, उस लफ्ज़ क्या मुराद लिया जाए? अल्फाज वाली इबारत। वह बिल मंतिक, और जो लफ्ज़ मंतिक है इससे मुराद लिया जाए क्या? अल मानियो। ठीक हो गई बात? फयकून अल माना, तो फिर माना इस जुमले का क्या बनेगा? किस जुमले का? अल किस्मुल अव्वल फिल मंतिक, इस जुमले का माना क्या बनेगा? माना बनेगा अन्ना हाज़िहिल अल्फाज वल इबारात फी बयान हाज़िहिल मानी। ठीक है, ये तौजीह निकलेगी, या उस जुमले की आप तौजीह या तवील ये जुमला निकालेंगे। कौन सा जुमला? इन्ना हाज़िहिल अल्फाज, हाज़िल अल्फाज से मुराद कौन से अल्फाज? जो अल किस्मुल अव्वल से हमने मुराद लिया। फी बयान हाज़िहिल मानी, और हाज़ा या हाज़िही का इशारा उन अल्फाज की तरफ है जो उनके ज़हन में है, और उन मानी की तरफ है जो उसके ज़हन में है। वयुहतमल वजूहुन उखर, एहतिमाल है कि दीगर वजूह भी यहाँ बतौर तवील पेश की जा सकती हैं। तो अब मैं तर्जमा ही करूँगा, इस इबारत का तर्जमा ही करूँगा, और तर्जमा ही तशरीह हो जाएगा। व तफसील, तफसील यह है अन्नल किस्मुल अव्वल, किस्मुल अव्वल से मुराद वो लफ्ज़ जो मुसन्निफ की इबारत में आया है, अल किस्मुल अव्वल फिल मंतिक, उस लफ्ज़ अल किस्मुल अव्वल जो है उससे मुराद इबारतुन हो सकता है, वो इबारत अन आहदे मानी सबआ, 7 चीज़ों से इबारत हो सकता है। कौन? लफ्ज़ अल किस्मुल अव्वल, यानी लफ्ज़ अल किस्मुल अव्वल से आप ये 7 चीज़ें मिला के या अलग अलग मुराद ले सकते हैं। वो 7 चीज़ें कौन सी हैं? अल अल्फाज वल मानी वल नकूश। अल्फाज से क्या मुराद है? जो ज़बान से सादर होती आवाज़, ये अल्फाज हैं। मानी, इस आवाज़ को आप बोल रहे हो, मोहम्मद बोल रहे हो, तो मानी है इस आवाज़ के जरिए दूसरे तक पहुंचाना चाहते हो, मानी जन में आ गई। नकूश से क्या मुराद है? ठीक हो गया, ठीक हो गया। हाँ मलिक, नकूश से क्या मुराद है?
नकूश मानिंदा जवाब, तो वो नकूश होते हैं। साइन बोर्ड पे जो होते हैं वो नकूश होते हैं। नकूश से आपके ज़हन में क्या आता है? जी लिखी हुई किताब आती है नकूश है। चलिए लिबास नक्शा बनाया जाए तो वो नकूश होते हैं। नक्शे की जमा नकूश है। हाफिज़ साहब नकूश क्या होता है? हाँ नकूश इबारत ज़हनी नकूश है। शाकिर वो नकूश है। हम जिस मुआशरे से उठ के आए हैं उसमें हमारे रोज़मर्रा के जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, हम ये जो किताब में लिखे हुए हैं ना, इसको इस तहरीर को भी लफ्ज़ बोलते हैं। हम यानी हमसे मुराद हमारे जो अजमी माशरे के लोग हैं। अरबी में इसको अल्फाज नहीं कहते, अरबी में इनको नकूश कहते, ठीक है ना। अरबी में लफ्ज़ कहते हैं जो ज़बान से सादर होने वाली सौत है। ये जो तहरीर है ना सफ़ाई किरतास के ऊपर आपको नज़र आ रही है, ये जो किताबत है, ठीक है ना, जो कलम की ज़बान है। आपकी ज़बान ना, आपकी ज़बान जो है जब भी बोलेगी तो आवाज़ के साथ बोलेगी, जब कलम बोलेगा तो उसकी आवाज़ नहीं होती है, मगर उसका नक्शा होता है, ठीक है ना। कलम जब चलता है तो बोलता है, कलम की ज़बान होती है, और कलम की ज़बान से जो निकल रहा है सफ़ाई किरतास के ऊपर नक्श बन रहे हैं। इस इबारत को, किताबत को क्या बोलते हैं? नकूश, ठीक है। नकूश ज़हन में आ गया? नकूश तुम्हारे ज़हन में नक्श हो गया है? रोका ही इसलिए था ताकि नक्श हो जाए। अच्छा, तीन चीज़ें ये हो गई। अवेल मुरक्कब मिनल इस्नैन, या इस्नैन से मुरक्कब कर लो। इस्नैन क्या मतलब? यानी मानी और अल्फाज को मुरक्कब कर लो, या मानी और नकूश को मुरक्कब कर लो। तो अब ये तीन चीज़ें जो हैं इनको आपस में आप दो बार मुरक्कब करो तो कितनी हो जाएंगे? दो को मुरक्कब करो, तीन चीज़ें हैं तो तीन दुनिया छः हो जाएंगे। छः यहाँ से निकलाएंगे सूरतें, यानी अल्फाज और मानी का मुरक्कब, अल्फाज और नकूश का मुरक्कब, फिर मानी और अल्फाज का मुरक्कब, फिर मानी और नकूश का मुरक्कब। अल्फाज को एक बार मानी के साथ मुरक्कब करो, फिर आप इसको नकूश के साथ मुरक्कब करो, क्योंकि दो दो का मुरक्कब बनाना है ना। अच्छा, तो अल्फाज का मुकम्मल हो गया ना दोनों के साथ। अब मानी को ले लो, मानी का नकूश के साथ, मानी के अल्फाज के साथ दोबारा गिनती नहीं करेंगे, डबल हो जाएगा, आसान, ठीक है, ठीक मुलाजा भी आपका। अवेल सलासाते, या तीनों का मुरक्कब ले लें, अल्फाज, मानी और नकूश का। अच्छा, ये तो हो गए वो एहतमाल जो हम मुराद ले सकते हैं। किससे? ये सबा कैसे बनेंगे? अल्फाज एक, मानी दो, नकूश तीन। फिर जब आप मुरक्कब मिनल इस्नैन लेंगे तो उस वक़्त आपको तीन सूरतें हासिल हो जाएंगी। तीन और तीन छः, और एक सूरत हो गई मुरक्कब मिनल सलासा की, तो सात सूरतें हासिल हो गई आपको। यानी ये सात चीज़ें आप मुराद ले सकते हैं। किससे? लफ्ज़ अल-किस्मुल अव्वल से। और मंतक से आप क्या मुराद लेंगे? कहते हैं वाल मनते को इबारतुन अन आहदे मानी खमसा, पाँच मानी हैं लफ्ज़ मंतिक, इन पाँच मानी से इबारत हो सकता है। लफ्ज़ मंतिक से ये पांच चीज़ें मुराद ले सकते हो। नंबर एक, अल मलका। मलका क्या होता है? मलका का माना कुदरत है। हाँ भाई, हाँ, मलका यानी सिफत है। हाँ भाई, मलका क्या होता है? राजनपुर में मलका क्या होता है? मलिक इदरीस, हैं? मलका यानी सनत, सिफत है। मलका सिफत है। मलका क्या होता है? ये तो उनको मैं रोक रहा हूँ, सिर्फ बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब रोक के बयान की जाए तो फिर वो समझ आ जाती है। सवाल करने का मेरा मतलब तुम्हारे इल्म का कोई गहराई ना अपना नहीं है। हो सकता है हम मुझसे ज़्यादा दकीक, आपका मुताला वसी हो सकता है, तो हम मिल
के चल रहे हैं ना, एक ही गाड़ी के सवार हैं। तो अगर आप मेरे सवाल से परेशान होते हैं तो फिर नहीं करूँगा। हाँ, मल का क्या होता है? तसल्लुत। इस तरह आना कि बगैर सोचे समझे उसका सही जवाब ऑटोमेटिक जवाब होता मल का। आप में से जो है वो गाड़ी कौन चला सकता है? बाइक चला सकते हैं, आप कार चला सकते हैं। गाड़ी अच्छे तरीके से चला सकते हो या ऐसे ऐसे चलाते हो? हाँ, अच्छे तरीके से क्या करा? अच्छे तरीके से। अच्छा, दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, ब्रेक दबानी है, क्लच दबाना है, ऑटोमेटिकली चल रहा होता है, बातें भी हो रही होती हैं। ये हर मर्तबा जो पहले जो वो सोचते हो अब टाइम आ गया क्लच दबाना है, बगैर सोचे समझे जो है जहाँ ज़रूरत है वहाँ क्लच की ज़रूरत, क्लच दब जाता, ब्रेक दाएं में मुड़ना है या गौर फिक्र करना पड़ता है। अच्छा, जो चीज़ प्रैक्टिस के बाद, तमरीन के बाद, बार बार तकरार के बाद इतनी महारत आपको हासिल हो जाए कि अब आपको वहाँ सोचने की ज़रूरत ना हो, ठीक है, वो आपके वजूद का, आपकी आदत का हिस्सा बन जाए। वो फन जो आपकी आदत का हिस्सा बन जाए उसे मलका कहते हैं, ठीक है जी। और सिफत जो होती है ना, उस मलका से छोटे दर्जे को सिफत कहते हैं। आप ड्राइविंग जानते हैं मगर अभी महारत नहीं है, फिर सिफत है। मलका कब बनेगी? यही सिफत ही मलका बनेगी जब आप कवि हो जाएंगे, ठीक है। तो सिफत और मलका का फर्क समझ में आया ना। मंतिक पढ़ने के बाद आपके पास मंतिक का इल्म आपकी सिफत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप मंतिक के कारीगर हो जाएंगे तो फिर मंतिक आपकी सिफत नहीं रहेगी, आपका मलका हो जाएगा। तो मंतिक से मुराद आप क्या ले सकते हैं? मलका। पहला माना ही उसने मलका ही है, या अवेल इल्म, मलका नहीं है, सिर्फ इल्म ही हासिल किया है। वो इल्म जो आने से आपके पास सिफत आ जाएगी इल्म की। अच्छा, तो इल्म जो है वो जमीउल मसाइल का भी हो सकता है, मंतिक के जमी मसाइल का, या जमी मसाइल का नहीं है आपके पास, इतनी मिकदार इल्म है मंतिक के मसाइल का, अल मुअतद बिही, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, जिसके भरोसे पे आप अपने आप को मंतिकी कह सकते हैं। अल्लाज़ी यहसुलु बिहिल इस्मत, इतनी मिकदार के जिसके साथ आपको इस्मत हासिल हो जाए। इस्मत से मुराद ये कि आप सोचने समझने में, चीज़ों को समझने में आप खता से महफूज हो जाते हैं। कितनी हो गए भाई? 2 मलका 1, इल्म बिजमील मसाइल 2, इल्म बिल क़द्र अल मुअतद बिही 3, और नफ्सुल मसाइल, एक है इल्मुल मसाइल, एक है नफ्सुल मसाइल। दोनों एक चीज़ है। मंतिक के अंदर जो मसाइल बयान हुए हैं बज़ात खुद, ठीक है, ये है नफ्सुल मसाइल, और एक है आपको आपके जहन में उन मसाइल का इल्म। तो मसाइल, देखो इस किताब के अंदर मसाइल हैं, लेकिन अभी आपने पढ़ा नहीं है तो उनका आपके पास इल्म नहीं है। पढ़ने के बाद आपको इल्म आ जाएगा उन्हीं मसाइल का। तो एक है उन मसाइल का इल्म और एक है वो बज़ात खुद वही मसाइल। नकूश तहरीर है, ये नकूश भी जो है उन मसाइल को बयान कर रहे हैं। ये जिस तरह लफ्ज़ जो है माने को बयान करता है, इसी तरह लिखा हुआ नक्श भी माने को बयान करता है। ज़ायद बोलो तो भी जो है वो उस बंदे की तरफ इशारा करेगा, और ज़ायद का लफ्ज़ लिख दो, शनाख्ती कार्ड में लिखा होता है ना, आवाज़ नहीं होती। शनाख्ती कार्ड है आपके पास? वो नक्श है। अच्छा, टाइम ख़त्म हो गया भाई, जल्दी करो। नफ्सुल मसाइल जमीयन या नफ्सुल क़द्र मुअतद भी, क़द्र मुअतद भी में भी आप नफ्सुल मसाइल ही मुराद लेंगे, लेकिन नफ्सुल मसाइल की इतनी मिकदार के अल्लाज़ी यहसुल बिही अल इस्मत। ठीक हो गई बात? तो 5 चीज़ें मुराद ले सकते हैं किस से? लफ्ज़ मंतिक से। फ़यहसुलु मिन मुलाहज़तिल खम्सति मअल सबअति खम्सा व सलासूना इहतिमालन। तो अगर 7 को 5 में ज़रब दो तो पहाड़ा कहता है कि ये कितनी सूरतें हो जाएंगी?
कितनी जुमले बनेंगे? 35 जुमले बनेंगे। युकद्दरो फी बाज़िहा अल बयान, लेकिन आप नहवी तसहीह के लिए यानी नहवी सयागत को या नहवी लिहाज से लुग़वी लिहाज से माने को दुरुस्त करने के लिए बाज़ जुमलों में लफ्ज़ बयान को महज़ूफ़ और मुक़द्दर मानेंगे। वफ़ी बाज़िहा अल तहसील, लफ्ज़ तहसील को मुक़द्दर मानेंगे। अविल हसूल, और बाज़ में आप हसूल मुराद लेंगे। है सो मा वाजादा होल अक्ल सलीम मुनासिबन, इन तीन में से, अब 35 सूरतें हैं, 35 सूरतों में से किन सूरतों में लफ्ज़ बयान को मुक़द्दर मानना है, किन सूरतों में लफ्ज़ तहसील को मुक़द्दर मानना है, किन सूरतों में लफ्ज़ हसूल को मुक़द्दर मानना है, कैसे पता चलेगा? कहते हैं मा वजद होल अल अक्ल सलीम मुनासिबन, जिसको अक्ल सलीम मुनासिब पाए। इन तीनों में से जिसको अक्ल सलीम मुनासिब पाए उसी को उस सूरत में वो मुक़द्दर मानेगा। तो चूँकि मुसन्निफ़ ने बात तुम्हारी अक्ल सलीम पे छोड़ दी है, तुम्हारे अक्ल सलीम लफ्ज़ बयान को जहाँ मुनासिब समझे वहाँ लफ्ज़ बयान मुक़द्दर कर दो। तुम्हारी अक्ल सलीम जहाँ पे लफ्ज़ हसूल को मुनासिब समझे, आप लफ्ज़ हसूल को मुक़द्दर मान लो। जहाँ तुम्हारी अक्ल सलीम लफ्ज़ तहसील को मुक़द्दर समझे, मुक़द्दर माने, तुम्हारी अक्ल सलीम खुद तुम्हें जो है वो बताएगी कि यहाँ ये लफ्ज़ मुक़द्दर होना चाहिए। ठीक है, तो चूँकि उसने बात तुम्हारी अक्ल सलीम पे छोड़ दिया है तो हमने भी तुम्हारी अक्ल सलीम पे छोड़ दी है। अस्सलाम वालेकुम।